ناظرین، غزل کے اس سفر میں ہم پہنچ گئے ہیں اس مقام پر جہاں غزل اپنی تمام حدوں کو پار کرتی ہوئی پہنچی ہے ایک ایسی جگہ جسے کہتے ہیں مشاعرہ گاہ۔ آج ہر شہر میں مشاعرہ منعقد ہونا ہماری تہذیبی روایت کا حصہ بن گیا ہے۔ اگر ہم مشاعرے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آج کے جیسے عوامی مشاعروں کا وجود کہیں نظر نہیں آتا۔ عہد ماضی میں بادشاہوں اور نوابوں کے درباروں میں مشاعروں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان میں عوام کی شرکت دور دور تک ممکن نہیں تھی۔ دہلی کی آخری شمع میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے بھی جس مشاعرے کا ذکر کیا ہے اس میں بادشاہ کے مصاحبین اور شہر کے اساتذہ کے علاوہ کسی عام آدمی کی شرکت کا بیان نہیں ہے۔ لیکن آج مشاعرہ ہندوستانی شاعری کا اہم ترین حصہ بن گیا ہے۔ گو کہ عوامی مشاعروں کی بنیاد پڑھنے کے بارے میں کوئی تاریخی کتاب موجود نہیں ہے، لیکن ملک کے مائناز شاعروں کے تذکروں میں یہ بات جا بجا آئی ہے کہ مشاعروں کا سلسلہ آزادی کی دوسری تحریک سے کچھ برس قبل شروع ہوا، جب ہندوستانی شاعروں نے انگریزوں کے خلاف عوام کو بیدار کرنے کی غرض سے مشاعروں میں انقلابی شاعری کا سہارا لیا۔ غزل جو ہے وہ دو مصروں میں عشق و محبت کی بھی بات کرتی ہے، وصل اور ہجر کی بھی بات کرتی ہے، عروج اور زوال کی بھی بات کرتی ہے، مسرت، انبساط اور غمزدگی کی بھی بات کرتی ہے۔ دل سے اٹھتا ہے، جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ میر کا ایک شعر جو ہے پورے عہد کے غم کو دو مصروں میں سمیٹ لیا کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ غزل اشاروں اور کنایوں میں عروج و زوال کی بات کرتی رہی، موافقت و مخالفت کی بات کرتی رہی، انقلاب کی بھی گفتگو کرتی رہی، زندگی کی نغمگی کو بھی بیان کرتی رہی۔ ناظرین، غزل نے پیار، محبت اور نفرت سے لے کر دوستی تک کی بات کی، اور جب انسانیت کی آزادی کا سوال آیا تو غزل نے یہاں بھی اپنا کردار بڑی شدت سے نبھایا۔ اردو غزل بنیادی طور پر استحصال کے خلاف رہی ہے، ظلم کے خلاف رہی ہے، غلامی کے خلاف رہی ہے، آزادی کی جدوجہد کی ہمنوائی کرتی رہی ہے۔ جہاں جہاں لوگوں نے آزادی کی جدوجہد کی وہاں وہاں اردو غزل نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ناظرین، غزل نے آدمی کے اندر اس جذبے کو ابھارنے کا کام کیا جسے انسانیت کا جذبہ کہتے ہیں۔ غزل آدمی کو اوپر اٹھنا سکھاتی ہے اور غیر برابری کو مٹا کر برابری کی بات کرتی ہے۔ ایک طبقہ ہوا کرتا ہے جو طبقہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے حالات ہیں ایسے ہی چلتے رہیں۔ کسی نے بہت اچھا شعر اس سلسلے میں کہا ہے، شباب میرٹھی کا میرا خیال ہے یہ شعر ہے، کہ کچھ لوگ جن کے پاس چراغوں کے ڈھیر ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں بہت لمبی رات ہو۔ تو اردو غزل جو ہے بنیادی طور پر اس بات کی وکالت کر رہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے وہ دوسروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اردو غزل اس کے خلاف ہے۔ جن لوگوں کے پاس دولت ہے وہ غریبوں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں، اردو غزل اس کے خلاف ہے۔ موجودہ حالات کو جو لوگ قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی برتری بنی رہے، اردو غزل اس کے خلاف ہے۔ اردو غزل انسانی مساوات کی علمبردار ہے۔ غزل نے آدمی کو سوچنا سکھایا اور اپنی منزل کو پہچان کر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی غزل نے بتایا، یا یوں کہیں کہ غزل نے آدمی کی سوچ کو بدلنے کا کام کیا ہے تو بے جانا ہوگا۔ غزل اپنے طرح سے انسان کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ سوچ کو آگے لے جانا چاہتی ہے، سوچ کو ترقی پسندی کی شاہراہ پر گامزن کرنا چاہتی ہے اور حالات کو تبدیل کرنے کا راستہ بتاتی ہے۔ اردو غزل جو ہے دراصل وہ انقلاب خود نہیں پیدا کرتی، وہ انقلاب پیدا کرنے والے ذہن کی تعمیر کرتی ہے۔ یہ اردو غزل کا کارنامہ ہے۔ انقلاب کی بات ہوتی ہے تو اقبال کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسے دور میں جب ملک پر محکومیت غالب تھی، یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے آزادی کو ترجیح دی۔ اقبال کی اس بات کو میں انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ سمجھتا ہوں، جب انہوں نے انگریزوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ مطلب پوری انگریزوں کی تہذیب، انگریزوں کے کلچر اور انگریزوں کے اقتدار کو غزل کے دو مصروں میں
उन्होंने चैलेंज कर दिया था, और ये डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। तो यहाँ से फिर लोगों में एक जुर्रत पैदा हुई, लोग खुलने लगे। बाद में फिर जोश मलिहाबादी ने तो और ज़्यादा तेवर के साथ और ज़्यादा बेबाकी के साथ अंग्रेज़ों को ललकारा। तो दरअसल उर्दू गज़ल जो है वो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ है, अदम मसावात के ख़िलाफ़ है, और उर्दू गज़ल जहाँ जहाँ जुल्म है उसके ख़िलाफ़ है, जहाँ जहाँ इस्तेहसाल है उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन इकबाल पूरी मंजिल बता रहा है कि इस ऐसे उस मंजिल पर पहुंचना है और पहुंचना चाहिए, तुमको इसीलिए इस जगह भेजा गया है। और बार बार इकबाल इसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं इंसान को कि तुम अपने अंदर जो छुपा हुआ एक इंसान है, तुम्हारे यहाँ जो छुपी हुई सलाहियत है, तुम्हारी जो अपनी शनाख्त है जो पोशीदा है, इसको बाहर लाओ, तभी तुम्हारी कामयाबी है। उस ज़माने में गज़ल के पैराए में बहुत से इनकलाबी अशार भी अवाम तक पहुँचे। कई ऐसे शायर हुए जिन्होंने लोगों के जहनों को झकझोरने का काम किया। इनमें फराक, फैज़ और जोश का नाम लिया जा सकता है। अब आप देखिए कि बेदारी जब आती है, जिस वक्त आदमी अपने हक की तलब करता है, जब आदमी बात करता है आज़ादी की, जब अदालत की बात आती है, तो गज़ल फिर एक नया रुख लेती है। आप देखिए गज़ल फिर मूवमेंट से जुड़ जाती है। और आप अगर नाम लेना चाहें तो इतना बड़ा शायर हमारे सामने से गुजरा फैज़ अहमद फैज़, कि जो पूरे मूवमेंट्स गज़ल में खड़े कर दिए कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले। और उसके बाद आज का शायर, इस दौर का शायर अभी जो जिंदा है, नाजिम जाफरी बनारस के, वो कहते हैं कि जिस वक्त वो आपस में एक इंतशार थे हिंदुस्तान के अंदर था, कि जहाँ एक कशमकश चल रही थी, किसी न किसी बुनियाद के ऊपर रंजिश पैदा हो रही थी, वहाँ वो आदमी कहता है, वो भी फिर तमसील को ला के रखता है और फिर तमसील की बात करता है, और वो कहता है कि तकसीम हो रही है नज़र, माजरा है क्या। देखिए नज़र का तकसीम होना, ये पहली बार ये तरकीब आ रही है। तकसीम हो रही है नज़र, माजरा है क्या, हाथों में मेरे टूटा हुआ आईना है क्या। आप देखिए इस तकसीम के बारे में। या फिर उस वक्त जब ज़ियाउल हक की हुकूमत पाकिस्तान में होती है और जब बहुत मुसल्लत होती है फ़ौजी हुकूमत आम आदमियों के ऊपर, वहाँ पर जो है वो ब्लैकआउट होता है, और एक शायर खड़े होकर वह कहता है, जो हिंदुस्तान टाइम्स में भी, अंग्रेज़ी अखबारों में भी जिसका तस्करा बाद में आता है, कि वो कहता है कि शहर अगर तलब करे तुमसे इलाजे तीरगी, साहिबे इख्तियार हो आग लगा दिया करो। ये चीज़ें जो गज़ल के अंदर पैदा हुई, ईरान से शुरू हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान ने उसको और बड़ा किया। खुदा न करे कि गज़ल के ऊपर बुरा वक्त आ जाए। इन काविशों के साथ अगर गज़ल आगे बढ़ती गई तो उर्दू लिटरेचर में गज़ल सारी दुनिया पर हुकूमत करेगी। नाज़रीन, जहाँ तक बात मुशायरे की है तो मुशायरा मोहब्बत बढ़ाने, मोहब्बतों का पैगाम पहुँचाने और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने का ज़रिया बन गया। शायद ही कोई हफ्ता ऐसा जाता हो जब मुल्क के किसी हिस्से में कोई आलमी या कुल हिंद मुशायरा ना होता हो। हिंदुस्तान के तमाम मुशायरों में एक अपना नुमाया मकाम बनाने वाले फ़ाखिर अदीब साहब हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं। मैं चाहता हूँ कि मुशायरा कमेटी की जानिब से उनका ज़ोरदार आप लोग इस्तक़बाल करें और फ़ाखिर अदीब साहब माइक पर तशरीफ़ लाएं। गुलाबी शबनमी सपनों के साए में बसर कर लें, गुलाबी शबनमी सपनों के साए में बसर कर लें, चलो इस रात को फूलों के साए में बसर कर लें। भजन मीरा के हो या मीर की गज़लों की खुशबू हो, मोहब्बत के हंसी लम्हों के साए में बसर कर लें। ये गज़ल सच्ची गज़ल के सच्चे शायर हैं, उनको सुनना है। सो मैं 4-5 शेर से आपकी शेरी तवाज़ु करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। जी मतलब क्या है कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। मुशायरे का सबसे बड़ा कमाल आज ये है कि मुख्तलिफ़ ज़हनी सतह के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ़ इल्मी सतह के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग बैठे हैं, लेकिन मुशायरे का जादू ऐसा है कि वो सबको अपने जादू में आज भी बहा ले जाता है। और
फ़ाखिर अदीब साहब माइक पर तशरीफ लाएं। मुशायरों ने हमारी जमहूरियत को मजबूत किया है, मुशायरों ने हमारे माशरे की मसावात को मजबूत किया है, मुशायरों ने हमारे मज़हब में जो इंसानी बराबरी का तसव्वुर है उस तसव्वुर को मजबूत किया है। मैं मुशायरों की इज़्ज़त इसलिए करता हूँ। इन मुशायरों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि शोरा की माली हालत भी काफ़ी बेहतर हुई है और अब एक अच्छे शायर को किसी दरबार की सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं रही, जिसकी वजह से शायरी में बेबाकी भी बढ़ी है। मुशायरा महंगा हो गया है, शायरों को पेमेंट अच्छा होने लगा इस दौर में। वो ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, बहुत फटे हाल रहा करते थे शायर, लेकिन आज ये दिख रहा है पैसा बहुत है, तो लोगों ने कहा इससे अच्छा तो कोई प्रोफेशन ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा काम ये है कि लेके गज़ल आ गए और परफार्मर होना चाहिए, परफार्मर होना चाहिए बस। अब परफॉर्म तुम अच्छा कर लेते तो बस वो आ गए। नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़र गज़ल का और हम इस सफ़र में पहुँचे हैं बज़्म शेर सुखन में। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और मकबूल शायर जनाब सरदार पंछी से। सरदार पंछी पंजाब के उन मशहूर शायरों में से एक हैं जिनके कलाम का चर्चा दूर दूर तक है। वो गैर मुनक़सिम भारत के शेखुपुरा शहर में पैदा हुए। उनका नाम वालिदैन ने करनैल सिंह रखा था। वतन की तकसीम के बाद वो पंजाब में मुकीम हुए, फिर राजस्थान में रहे। इस बीच उर्दू, हिंदी और पंजाबी में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। बाद में यूपी में रहने लगे और अवध मेल के नाम से एक अखबार भी निकाला। सरदार पंछी की अब तक उर्दू, हिंदी और पंजाबी में 22 किताबें शाये हो चुकी हैं। सरदार पंछी आज एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ गज़ल के गेसू संवारे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई हालात और शेर व शायरी से शगफ़ के बारे में। पहला गीत मैंने 1945 में लिखा था, जब मैं 5वें दर्जे में पढ़ता था। पाकिस्तान का ज़िला शेखुपुरा गांव था हमारा पिक्कीवीर का, जो सिखों का जो एक तरह का काबा है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब से 2-3 स्टेशन पहले हमारा गांव था। हमारे पिताजी, हमारी हवेली सड़क के ऊपर थी और पिताजी के दोस्त जो शायर थे, जैसे नंदलाल नूरपुरी थे, बाबा फिरोज़ुद्दीन शर्फ थे, उस ज़माने के जितने पंजाबी के शायर थे वो महीने 2 महीने के बाद वहाँ बैठक किया करते थे। रात भर शायरी होती थी और मैं छोटा होता भी बैठा रहता था, नींद नहीं आती थी, मैं उनकी शायरी सुनता रहता था। 5वें दर्जे में मैंने पहला गीत लिखा था जब बंगाल में अकाल पड़ा, बंगाल में कहत पड़ा, तो वहाँ पे हमने लोगों से अपील की थी कि आओ थोड़ा थोड़ा अनाज लेके चलें, भूखे लोगों के पेट में डालें। ऐसे एक गीत मैंने लिखा था। सरदार पंछी की मादरी ज़बान पंजाबी है। इसके अलावा कई ज़बानें जानते हैं और तकरीबन सभी ज़बानों में शायरी भी करते हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि ये सब कैसे हो पाता है। एक एहसास ऐसा जागता था कि देखिए मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है, मैं उर्दू में लिखता हूँ, थोड़ी बहुत पर्शियन जानता हूँ, थोड़ी बहुत संस्कृत जानता हूँ, दूसरी भाषाओं में अवधी जानता हूँ, हिंदी अच्छी तरह जानता हूँ। तो ये एक मुतमईन होता था, एक जो इत्मीनान का एहसास है, जो इत्मीनान, एक शिद्दत जो है इत्मीनान की, वो होती थी। और जब कोई आदमी मुझसे अवधी भाषा में कोई गीत सुन लेता था तो लोग खुश हो जाते थे। उनकी खुशी मैं सबसे बड़ा हासिल मानता था। उनका जो इत्मीनान होता था या उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती थी, वो मैं सबसे बड़ा इनाम मानता था कि वो महसूस कर रहे हैं कि ये आदमी हमारी भाषा ना जानते हुए भी हमारी भाषा में शायरी कर रहा है, लिख रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। शायरी एक ऐसी शय है जो उनको भी पसंद आती है जो ज़बान नहीं जानते। इसी से लगता है कि उर्दू गज़ल का मुस्तक़बिल महफूज है। पहली बात, जहाँ तक शायरी की बात है तो जो उर्दू का एक लफ्ज़ भी नहीं जानते, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो मुशायरा सुनने के लिए सबसे ज़्यादा वही लोग आते हैं। उनको उर्दू शायरी के अंदर जो लताफ़त है, उर्दू शायरी के अंदर जो सलीक़ा है, एक ज़बान का सलीक़ा है, वो उनको मुतासर करता है। कई बार ऐसा देखा गया कि छोटे से लफ्ज़ का भी वो मतलब नहीं समझते हैं। अब हमारी मजबूरियाँ ये हैं कि अब हम मुशायरा पढ़ते हैं ऐसे इलाके में जहाँ पे उर्दू ज़बान जानने वाले कम लोग हों, दूसरी ज़बानों के लोग जो शौकीन हैं वो सुनने के लिए यहाँ आए हों, तो हमें किसी न किसी लफ्ज़ का मतलब बताना पड़ता है। शेर पढ़ने से पहले या शेर पढ़ते वक्त हम उस लफ्ज़ का मतलब, जैसे लफ्ज़ अना आया, अब उनको नहीं मालूम अना क्या, तो अना का लफ्ज़ बता दिया। जैसे अब एक लफ्ज़ बोसा है, अब उनको
نہیں معلوم ہے، تو اگر ان کو ہم اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں کہ بوسے کا ارتھ یہ ہے تو ان کو وہ شعر سمجھنے میں آسانی لگتی ہے، آسان لگتا ہے. اور میں نے محسوس کیا ہے مشاعروں میں خاص طور پر کہ سب سے زیادہ اثر زبان کا انہی لوگوں پہ ہوتا ہے جو اردو زبان نہیں جانتے. ناظرین آئیے اب سردار پنچھی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک خوبصورت سی غزل ہمیں سنائیں. سنیے گا. اس نے پھینکا گلاب پانی میں، اس نے پھینکا گلاب پانی میں، میرے خط کا جواب پانی میں، میرے خط کا جواب پانی میں. اور ایک شعر سنیے خاص طور پر. ساحلوں پر اداس مت بیٹھو، ساحلوں پر اداس مت بیٹھو، ڈوب جائیں گے خواب پانی میں، ڈوب جائیں گے خواب پانی میں. ایک تصور کیجئے کہ ایک بہہ رہی ندی، اس کے کنارے پر ایک دوشیزہ، اس کے ننگے پاؤں پانی میں، کیا حالت ہوگی پانی کی. شعر سنیے گا. اس کے پیروں کا لمس پاتے ہی، اس کے پیروں کا لمس پاتے ہی، آ گیا انقلاب پانی میں، آ گیا انقلاب پانی میں. اور اپنی دنیا سے خوبصورت ہے، اپنی دنیا سے خوبصورت ہے ایک دنیا جناب پانی میں. اور سبھی لوگ اپنی اپنی برادری کا لحاظ رکھتے ہیں، تو آخری مقطع میں نے اپنے شاعر برادری کا لحاظ رکھا ہے. سنیے گا. شاعروں کے گناہ بھی پنچھی، شاعروں کے گناہ بھی پنچھی، بن گئے ہیں حباب پانی میں، بن گئے ہیں حباب پانی میں. کیا کہنے. ناظرین سردار پنچھی صاحب کی ایک اور غزل کے چند اشعار سنتے ہیں سر اور تال کے ساتھ ایک دلکش آواز میں. یہ نقشے قدم دے رہے گواہی، ادب کا یہ لمبا سفر آپ کا ہے، زمین سے شروع ہو کے عرش بری تک، ہر ایک کہکشا سے گزر آپ کا ہے یہ نقش قدم. چمکتے ہیں کاغذ پہ الفاظ و معانی، سیاہی میں شامل جو ہے خون دل بھی،
जिसे देख कर सोई धड़कन जगे। वो खत आपका, नामा बड़ आपका है, ये नक्शे कदम। कलम के दहाने से जो रंग निकला, उन्हीं से बने हैं ये रंगीन मंजर, उन्हीं से बने हैं ये रंगीन मंजर। है संध्या की आँखों में काजल की रेखा, उफक पर भी रंगे सहर आपका है, ये नक्शे कदम। कभी अश्क बारी से है आब यारी, कभी सिसकियों से हुई रिश्तेदारी, कभी सिसकियों से हुई रिश्तेदारी। है जितने भी दिल और आँखों के मौसम, सभी मौसमों पर असर आपका है, ये नक्शे कदम दे रहे गवाही। अदब का ये लंबा सफर आपका है, ज़मीं से शुरू अर्शे बरी तक हर एक कशा से गुजर आपका है, ये नक्शे कदम। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये पेशकश काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। हम तवक्को करते हैं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम की अगली किस्त का इंतज़ार रहेगा। अगली किस्त में हम आपको गज़ल के सफ़र पर बेशकीमती मालूमात फराहम कराएंगे और मिलवाएंगे उर्दू के एक और बड़े शायर से। तो फ़िलहाल आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए DD उर्दू।